तारे जमीन पर। जी हां, तारे जमीन पर का मंजर बेंगलुरु के वेटिकन हाई स्कूल में देखने को मिल रहा है। यहाँ का हर स्टूडेंट्स मुस्तकबिल का सितारा बनकर बुलंद हौसलों के साथ, बुलंद अज़ाइम के साथ आगे बढ़ रहा है। दौरे हाजिर में तालीम आम हो रही है। हर बच्चा ज़ेवरे तालीम से आरास्ता हो रहा है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज मियारी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन फराहम करना है। इस ज़िमन में बेंगलुरु की वेटिकन हाई स्कूल तमाम स्कूलों के लिए मिसाल बनकर उभर रही है। इदारे के जिम्मेदारान सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद मोहम्मद मोइन, सैयद मोहम्मद समीन और स्कूल के टीचर्स और तमाम स्टाफ की मेहनत, जिद्दोजहद रंग ला रही है। हर साल एसएसएलसी के नताइज में इजाफा हो रहा है। इस साल वेटिकन हाई स्कूल में 54 यानी 54 तलबा व तालिबात ने एसएसएलसी का इम्तिहान दिया था। इनमें 40 तलबा डिस्टिंक्शन और 14 तलबा फर्स्ट क्लास दर्जे से कामयाब हुए हैं। इस तरह यहाँ का रिजल्ट 100% रहा है। डिस्टिंक्शन पाने वाले कुल 40 तलबा में 9 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने 600 से जायद मार्क्स हासिल किए हैं। चलिए जानते हैं वेटिकन हाई स्कूल की कामयाबी का क्या राज है और यहाँ आला नंबरात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात के क्या ख्यालात हैं। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। Hello, my name is Naila Amber. I'm from Vatican High School. Firstly, I would like to thank Almighty for all the things He has blessed upon me, and then I would like to thank my parents for all the things they have given to me, and I would like to thank the management, principal sir, and all the teachers for their care and all the things they have given to me. And so, what is your percentage? I scored 97.92% this year. That's 612 marks out of 625. And in English I got 121, and Kannada, English and social I got 100, and in maths I got 97, and in science I got 94. कामयाबी मिलने की क्या वजह क्या रही, किसका ज़्यादा सपोर्ट रहा आपके लिए? I would say it's my parents and the teachers. क्या करते हैं आपके फादर, क्या काम करते हैं? I don't have my father. मदर ही आपके लिए पूरे से क्या करते हैं आपके? My mom is a physiotherapist. Good. My name is Umesh Hazia. I have scored 94.4% with gaining 590 marks. It's all because of most probably God's will, and He has showered our blessings upon all of us, and all of us has passed through shining colors because of our teacher support. To be honest, they have worked really hard for our success, working day and night without even hesitating. We have all 24 hours doubt support. They give personal attention to us, and our parents have made possible paying our fees and personal health, everything. It's all because of them. Thank you. Thank you. I've really not decided anything, but I have a dream to become someone whom I need no introduction. Very good. Come. What will be your future? After 10 years, you might see me as a psychiatrist. I'll be a successful person with a high-paying job. Thank you. Thank you. Yes, come. My next plan is to become a successful engineer. I hope so. I'll be successful in helping What's your people. name and what is your percentage you have chosen? Okay, my name is Zoha Fatima. My percentage is 96.32. It's mainly because of God's blessing, and thank you to my parents, my teachers, your principal sir, Mamta ma'am, Anita ma'am, Nasima ma'am. Thank you so much.
then it's because like I want to become an engineer, and I hope I'll help people in future. My name is Aidam Said. I've secured 95.04%. All by will of God. I'd like to thank my parents, teachers, and the management. Without their help, I wouldn't have been here. In future, I will be a successful doctor. So you want to be a doctor? Yeah. Best of luck. Thank you, Dr. Myself Zaid Pasha, and I scored 96.8% in final exams. After 10 years I'll be a software engineer, skilled software engineer. That's my plan. Software engineer. What is your father doing? He's a pharmacist. He runs a pharmacist. So subject wise, what is your results? I scored overall percentage. Overall 96.8 I scored, and overall marks 605. I scored subject wise in English I scored 122, Kannada 95, Hindi 98, Maths 98, Science 95, and Social 98. Myself Harshvardhan, and I scored 96%, studying in Vatican High School, and I scored in English 122, and in Kannada 99, in Hindi 99, Math 99, Science 82, and Social 99, and I'm an aspirant of becoming an aeronautical engineer. Good. I have scored 95.2%. My overall marks were 595. I had scored 123 in English, 98 in social, 94 in math, 88 in science, 97 in Hindi, and 94 in Kannada. What will be your future plan? I want to become automobile engineer. Name is Muhammad Rihan. I'm a student of this institution. I scored 96.64% in my 10th SSLC, and the overall score was 604, and I scored 120 marks in English. Then I scored 99 in maths, then 99 in social, then 89 in science, then 100 in Kannada, and then 97 in Hindi. So how is support from teachers and management? It was really very good, and I think that's a very important reason for us to get such high marks. And I have scored 95.04%. My total score is 594. I scored 116 in English, 99 in Kannada, 100 centum in Hindi, 99 in maths, and 88 in science, and 94 in social science. So what will be your next? Software engineer. I would like to become a software. Good. Yes. Good afternoon. My name is Hamad Beg. I scored 604 in my 10th, which is 96.64%. I got 120 in English, 91 in Kannada, 99 in Hindi, 99 in math, 98 in social, and 97 in science. I would like to become CA. Thank you. Roshan, I am studying in Vatican High School. I secured myself Mohammad Roshan. I studied in this institution. I secured 95.84%, which is 599. Marks. So what will be your next step? Next step, SMBA Commerce. Then I will take degree, and IPS I will write UPSC examinations. Thank you. Myself Mohammad Mubashir. I scored 96.32% in SSLC examination. My overall score was 602 out of 625. In English I scored 119, in science 88, in Kannada 99, in Hindi 99, in social 97, and centum in maths. The school was a strong foundation for my success. I would really thank the school, and my future planning is to become a robonautical engineer. So I would like to take PCME in PUC. Thank you. Good. इस इदारे का क्या नाम है और क्या मकसद रहा? इस इदारे का नाम है वेटिकन हाई स्कूल।
ये मकसद ये है कि स्कूल स्टार्ट करने का मिड मतलब जो ऑफर्ड करने के स्टेज में जो नहीं रहते हैं ना पेरेंट्स, उनको भी एक अच्छी एजुकेशन देना कहते सो एक इरादे के साथ स्टार्ट करें। इसके वास्ते पहले मैं खुदा ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनकी एक मेहनत, और हमारे प्रिंसिपल साहब एमईएस कॉलेज को फर्स्ट रैंक स्टूडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक मेहनत है, और ओवरऑल हमारी एंटायर फैमिली इसके वास्ते कर को जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और रहम है। हमारे स्कूल पूरे 12-13 साल से 100% रिज़ल्ट, फर्स्ट क्लास रिज़ल्ट के साथ हमें कामयाब हों कर को बोलने में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। आपसे ये मुमकिन हुआ कि सभी बच्चे जो हैं यानी कि तकरीबन 95 अबव 90 स्कोर किए हुए हैं, हम देखते हैं कि पहली बार कई इदारों में हम देखते हैं कि 80-70% वहाँ तक ही रुक जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे माहौल है सर कि इस तरह के रिजल्ट आने की क्या वजह है? अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा हम करते हैं पहली बात, और मोर हम प्रॉपर प्लानिंग से हम शुरू करते हैं। ऐसे नहीं कि बच्चे आ जाने के बाद क्या पढ़ाना है वो नहीं, जैसे कि 1 साल के पहले ही हम क्या करते हैं पूरी तरीके के नेक्स्ट ईयर बैच के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। जब बच्चे 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में रहते हैं तभी हम क्या करते हैं फ्यूचर SSLC का प्लान हम रेडी करके वो बैच के लिए रख देते हैं। तब जैसे बच्चे 10th स्टैंडर्ड के अंदर एंटर होते हैं, जो उन्हें चाहिए वो प्लान हमारे पास रेडी रहता है। तो हम इसमें बच्चों को ग्रुप कर लेते हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली हम प्लान करते हैं, ताकि ये कमज़ोर बच्चे भी टॉप बच्चों के साथ compete कर सकें। उसमें जैसे जैसे SSLC के years बढ़ते जाते रहते हैं, वो मच डिफरेंस ना आए कि इन बच्चों में कमी रह जाए और थोड़े बच्चे आगे चले जाएं। इसीलिए आप हमारा रिजल्ट देख सकते हैं, कोई भी बच्चा 70 से कम नहीं है। तो सारे बच्चे 70 के ऊपर हैं, 40 स्टूडेंट्स 85% के ऊपर हैं। सो टोटल ओवरऑल डिस्टिंक्शन हमारे पूरे 40 स्टूडेंट्स हैं 54 में से, और 95 के आगे 15 स्टूडेंट्स हैं। टोटल 54 स्टूडेंट्स। सो हम ये ऐसे बॉन्ड हम तैयार करते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ, ताकि सब बच्चे कंफर्टेबली वो पढ़ सकें, बिना कोई भी डाउट हो बिना हिचकिचाए अपने पूरे डाउट्स स्कूल में क्लैरिफाई कर घर जाए। So like this methodology we adopt in teaching in such a manner that a student is very much comfortable with the teacher. That is the student and the teacher relationship we try to build up, so that after the parents, the student considers his teacher as the parent. Any doubt, any problem, they wholeheartedly come towards the teacher and get their doubts clarified. Thank you. Your good name and Syed Mohammad Moin. I am the principal of Vatican High School. अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देख रहे हैं हमारे वैटिकन स्कूल में। जैसे अभी हमारे प्रिंसिपल सर ने बताया है, रिलेशनशिप मैटर्स अ लॉट। ये एजुकेशन सेक्टर का मेन रीज़न और मेन एजुकेशन बच्चों को तभी मिलता है जब बच्चा टीचर्स से 100% कॉन्फिडेंस से वो भरोसा कर सके कि ये हमें इनके ऊपर ट्रस्ट है। देखिए कोई भी बच्चे को कोई भी एजुकेशन सिस्टम आप ले लीजिए, उसको डिफ़िकल्टी लगता है, बट व्हेन यू मेक इट अ पॉइंट दैट यू मेक हिम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, तो ऑटोमेटिकली बच्चा आके वो सिचुएशन को आगे पार करके एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जिसके वजह से वो अपने एजुकेशन को सही कर सकते हैं। लास्ट एकेडमिक ईयर 37 स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन लिया था आउट ऑफ 55। ये साल आपको 40 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 54। लास्ट एकेडमिक ईयर आपके अबव 90% के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 10 थे, तो ये साल ऑलमोस्ट आपके 25-24 के आसपास हैं। तो इस तरीके से हर साल तो हमने यहाँ पे ग्रोथ ही देखा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ दिस मीडियम इज फॉर ऑल द पेरेंट्स हु एवर आर हैविंग अ क्लियर इंटेंशन दैट मुझे कुछ एजुकेशन सिस्टम में मेरे बच्चे के लिए करना है। ये 1 साल का काम नहीं है,
दिस इज़ अ कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ ऑल 10 years। जब आप ग्रेड 1 में आप जमाते हैं तब से बच्चे को क्या माहौल देते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स की दिली तमन्ना होती है कि मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, लेकिन होता कैसे है? सिर्फ मार्क्स पढ़ाने से या मार्क्स ले लेने से नहीं होता, एक बच्चे को वो माहौल देना ज़रूरी है। जब मेरे साथ हुआ, अभी चेयरमैन सर ने बताया था कि आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आई हैव टेकन 5th रैंक अमॉन कर्नाटका, और मैंने अपना गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ट्रस्ट मी, ये सब होने का वजह बिकॉज ऑफ हिज वाइज थिंकिंग प्रोसेस। उन्होंने मुझे बहुत अर्ली एज में ही, जब मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में था, जब मैंने अपनी स्कूलिंग कर रहा था, तो ही पुट मी इनटू एन एनवायरनमेंट। ही यूज्ड टू टेक मी अलॉन्ग विथ हिम एंड हेल्प मी आउट विथ वेरियस एक्टिविटीज़। वो उनका बिजनेस था, तो वहाँ पे लेके जाके मुझे अकाउंट्स का दिखाते थे। तो तब से मुझे वो नंबर्स में एडिंग, सब्ट्रैक्शन, ये सारे एक्टिविटीज़ में मैंने इंटरेस्ट दिखाया। वो देखते देखते उनको लगा कि चलो इसका मैथ अच्छा है, तो इंजीनियर 10th स्टैंडर्ड के बाद उन्होंने सजेशन दिया आप इंजीनियरिंग करो, आप सिविल में जाओ। अगर वो टाइम पे अगर उन्होंने मुझे कह दिया होता कि नहीं बेटा आप डॉक्टर बनो, तो शायद बायोलॉजी वुडंट हैव बीन माय कप ऑफ टी और आई वाज नॉट इंटरेस्टेड मच अबाउट इट। तो उन्होंने ये स्ट्रीम चूज किया जो मेरे इंटरेस्ट से अलाइंड है, जो मेरे पैशन से अलाइंड है। तो एक माँ बाप, एक स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये सारे एक्टिविटीज़ में वर्कआउट करने के लिए। और ये जितने भी बच्चे हमारे जो 40 स्टूडेंट्स आप देख रहे हो जो डिस्टिंक्शन ला के हैं, उनको हमने बस यही मेथोडोलॉजीज को प्लान किया है और इसी को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। 10th स्टैंडर्ड राइट फ्रॉम grade 1 onwards, we have motivated them, we have called their parents, we have counseled them, n number of sessions have happened। प्रिंसिपल सर कभी भी टाइम मिले तो क्लास में एंटर हो जाते थे एक सेशन कंडक्ट करने के लिए, बच्चों को हिम्मत देने के लिए, बिकॉज एंग्जाइटी, ये परेशानी सब में होती है, कैसे पास करें, कैसे कंप्लीट करें। अब जब प्रिंसिपल सर ये सारी चीज़ों को जाके उनके सामने शेयर करते, जब मैं अपने कॉलेज के लाइफस्टाइल उनके सामने शेयर करता था, तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी, अरे यार सर ने कर लिया, हम भी कर सकते हैं, हमें भी एक मोटिवेशन मिल गया। तो ये फीस वाइज कैसा है सर यहाँ पे? फीस वाइज नॉमिनल है, जो भी एक एवरेज स्कूल का नॉमिनल स्ट्रक्चर है अराउंड वो हिसाब में कंप्लीट हो जाता है। सो अनलाइक मोस्ट ऑफ योर institutions which are having huge structures more than 1.5 lakh 2 lakh rupees, वो हिसाब का फीस स्ट्रक्चर कुछ है नहीं यहाँ पे। जैसे प्रिंसिपल चेयरमैन सर ने पहले भी बताया था, यहाँ पे मेन ओपन करने का मकसद ही हमारा स्कूल का वही था कि वी कैन रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who can afford this kind of education system. Thank you so much. आपका नाम और जिम्मेदारी? जी, myself Syed Mohammad Samin, I am one of the director of Vatican High School.